Hello, everyone. Welcome to Gyan Prabha, the flow of knowledge, where curiosity meets conversation. This is the podcast series, episode 4. This is the Foxy Presidential Initiative by none other than our own visionary President Foxy, Dr. Sunita Tandulwarkar, Madam. Today's host is Dr. Supriya Jaiswal, Chairperson, Adolescent Health Committee, Foxy, and in this Grand Gyan Prabha, we have Dr. Paracha, the renowned sexologist from Ahmedabad, Gujarat, as our guest speaker. The topic of today is adolescent sexuality, since it is the talk of the day and most required topic. Now, for the welcome address, may I request the lady behind the huge show who created and curated the show, none other than our own Foxy president. And I'm thrilled to introduce you, dear madam, the remarkable, dynamic, and inspiring leader who is a true catalyst for transformation. Madam is the dynamic president Foxy, an organization of more than 46,000 gynecologists all over India, even abroad. Being the HOD OBGYN chief of IVF Endoscopy Center Ruby Hall Clinic, Pune. She is also the founder and medical director of Solo Clinic IVF at Pune. Madam is also the co-founder and medical director of ALIF, that is Stem Cell Research and Application Center at Pune. Worth noting that Madam has the credit of India's first stem cell baby and world's first at the age of 45 on 16th of April, that was 2018. So she's proud recipient of so many awards. I can't name all of them because the CV is too long. She's Pride of Foxy. She'd been awarded Bharat Gaurav Puraskar, Glory of India Award, and many like Rashtriya Gaurav Award, letter of appreciation from the president himself in 2012. So, Madam has many accolades to her credit, and she is author of 18 books and 85 publications. This shows her dedication and passion for literature and publications. That is why Madam has a blast of 7 big publications in starting from her own presidential year. So, with great admiration, I present the spiritual, compassionate leader who believes in inclusiveness, embodies empowerment and wisdom. From the bottom of our hearts, we express our deepest appreciation, dear Madam, for the tireless efforts that you have been doing and given us this huge platform to showcase our talent. Over to you, Madam. The Foxians are eager to hear you. Address us, dear ma'am. Thank you. Thank you, Supriya. Thank you so much for your kind word. Dear friends, I know it may not be just the Foxian, but many more may be joining this podcast and will be listening to this podcast because it is going internationally as well. These 30 committee chairpersons of mine are very dynamic and they are probably the future leaders of our Foxy. So when Foxy presidential activity, the various things I was designing, one thought came in my mind is the chairpersons work very hard. They wish to do so many things, but unfortunately, they may not get opportunities all the time because they are working at a little lower cadre in the organization. So the thought process came in mind, why not to give them a complete platform where they can have their own podcast that will show their talent, their creativity, their leadership, which will be nurtured in future to become one of the Foxy president. We have 30 committee chairperson. So if Supriya is on 1st of every month, she will be if she is on 1st February. So every 1st of every month, you will have Supriya for you. Now here we are taking the interviews of renowned people, may not be from obstetric gynec, may not be academician, they may be politician. And on 31st, when I am coming, the month which has 31st, like yesterday, I'll be talking about spirituality in medicine with one of the spiritual leader who will help us to understand the spirituality in a true sense.
These podcasts are available on YouTube channels. The same link is for joining. So anytime if you have missed, you can always revisit. But I humbly request you, 8 p.m., give to my team for a GAN Pravaha. Just put up Bluetooth even when you are driving back home, even when you are having food, even when you are watching TV, the news channel. Just put the Bluetooth and hear my girls and boys taking efforts for entire month to choose the best of this interviewer. And I'm so thankful, Dr. Parasha from Ahmedabad. Of course, Supriya will do the proper introduction, but I'm so glad that with this platform, I got connected to you and I feel humbled to know you now, Dr. Paras. Whenever I will come to Ahmedabad, I'll definitely try and meet you in person. Thank you for giving your valuable time to us. And back to you, Supriya. Thank you very much, madam, for the words of blessings and wonderful interaction. Madam, we are blessed to be under your leadership, and we are really happy that every first of every month I'll be ready with one celebrity of your choice. I will like that you really like the thing I am doing. Thank you, madam. Thank you very much. So now over to the guest speaker. The guest speaker of today, as we said, is Dr. Parasha. He's a diplomat of American Board of Sexology. He is also the fellow of American Academy of Clinical Sexology. He's practicing since last more than 20 years at Ahmedabad, and he's also sir is the vice president, the International Association of Sexual Medicine Practitioners and Modern Medicine, being the board member of International Council of Sex Education and Parenthood, that is very important, organizing chairman of many conferences, given has presented so many wonderful talk on this subject that is very difficult actually and not very common, published more than 60 original research papers in Indian and international journals. You had already been awarded by best paper how sexual life affected after was affected by all after Godhra riots in 2002 and Twin Tower attack in USA. That is wonderful, excellent. So he is also a columnist in more than 15 newspapers and magazines, including Divya Bhaskar, Gujarat Samachar, Femina India, and many more. Given usually he is being called as guest speaker in the Psychiatric Association Gynec Societies. He is also the husband of Dr. Archana, who is the gynecologist, dear madam, for your information. Other than this medical part, he is also the non-medical director of Hindustan Enviro Life Protection Services, director of It Matters India, director of Pulse Healthcare Limited, Riddhi Steel and Tube, and director of S. Motiram Frozen Food Export Division. So he is also not only the sexologist, a doctor, a psychiatrist, and also a business tycoon, I can say. He's a huge, wide range of multitasking person indeed. So I'm very much honored to have you, Dr. Parasha, today at our podcast series. That is on you are going to speak on the adolescent sexuality. So just I hand over to you for a few words, then I'll take up the questions. Supriya, Thank you, Dr. Supriya. you should have taken the subject how to be an entrepreneur with him. Yes, we'll ask him also. We'll ask the question also, madam. Yes, rightly said. Thank you, President Madam, for kind words and giving me this opportunity to be a guest in your platform. And it will be always honor to host you at Ahmedabad. Ahmedabad is a metro city, vibrant city, so we'll love to have at Ahmedabad. And Dr. Supriya, thanks for kind words. Uh, whatever questions you have, whatever things comes in your mind regarding the sex and sexuality, adolescent sexuality particularly, you can definitely ask me. I'll try to justify my presence over here. Thank you, Supriya. I leave the platform and I join from a delegate link. And lovely to take so much effort for Foxy and for me. Thank you. Thank you, Parashji. Thank See you. you soon. Thank you, madam. Thank you. So now over to you, Dr. Paras.
we actually, all the Foxians, it's not very easy to discuss this topic on any platform. But I would like to ask you, in adolescence, there are many, many children who are sticking to the screen, that is the internet. So, what do you think is formal sexuality education? So, how can it help? What is the importance of this education to the adolescent children, boys and girls? See, basically, what is a sex education? Sex education is ideally involves educations about the anatomy and the physiology of human reproductive system, conception, contraception, psychosexuality, sexual difference, and the constitute of love as they relate to sexual behavior. And it's not merely only to teach the kids how to produce the baby. So it's a vast subject, but most of the people what they think कि सेक्स एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चों को सिखाना है कि बच्चे कैसे पैदा किया जाता है. It's not true. It's a very vast subject. It provides the ground on which an individual develop into the healthy, responsible adult capable of using the innate sexual instinct to the fullest potential and without being obese about it. And it enable one to identify and comfortable with one's own sexuality. So it's a very important subject to give the sex educations to the all adolescent people. Yes, rightly said. ऐसा है कि डॉक्टर पारस, आई वुड आल्सो लाइक टू यू टू एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस कि बच्चे जब जानना चाहते हैं, दे फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू देयर पेरेंट्स. सो इफ द पेरेंट्स दे डोंट वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक विद द चिल्ड्रन, so they go to the peers. So how does it affect? They go to some other social media where they can, and friends also, they know very less of this. So during your lifespan, have you in your family anywhere, you must have seen some adolescents. So what are your opinion about them? What do they usually do, and what can we do to help them out in this? व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है डॉक्टर सुप्रिया कि सेक्स एजुकेशन की बात आती है ना, तो पहली बात तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, स्कूल एक्सेप्ट नहीं करती, कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि उसकी जरूरत क्या है. पहले भी इस जमाने में भी बच्चे होते थे, पहले भी बच्चे आगे आए हुए हैं, लेकिन पहले और आज की तारीख में बहुत सारा फर्क है. सबसे पहली चीज क्या होती है कि सेक्स एजुकेशन की जरूरत क्यों है आज की तारीख में. पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि कोई इंटरनेट नहीं हुआ करता था, कोई टीवी नहीं था, न्यूज़पेपर तक नहीं था. लोग सुबह जाते थे, खेतों में जाते थे, खेतों में जाने से पहले मंदिर में जाते थे, मंदिर में भगवान के दर्शन करते थे, शाम को वापिस आते थे, खाना खाते थे, सूर्यास्त से पहले खाना खत्म हो जाता था उनका, और उसके बाद शाम को वापिस वो मंदिर जाते थे और वापिस चौराहे पे के बैठते थे. मंदिर में 3 साल का बच्चा भी जाता था और 80 साल के बुजुर्ग भी जाते थे. तो हर कोई जाता था, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, एडल्ट हो, कोई भी हो, सब मंदिर में जाते थे. तो उस टाइम के जो राजा लोग थे वो इतने विजनरी थे कि उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसी जगह है कि जहां एजुकेशन दिया जा सकता है, और सेक्स एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि वो हरेक के लाइफ में कहीं ना कहीं टच करती है. तो उन्होंने क्या किया, मंदिरों की दीवार पे सेक्स एजुकेशन देना शुरू किया. आप कोणार्क की टेम्पल देख लीजिए, वहां पे उसकी दीवारों पे से डिफरेंट स्कल्पचर बनाए और उसमें से सेक्स एजुकेशन देते. तो मतलब बच्चा जब छोटा था तब से उसको एजुकेशन मिलता था, उसको कोई क्यूरियोसिटी नहीं रहती थी सब्जेक्ट के लिए. और उसके बाद क्या हुआ कि मुगलों ने अपने पे अटैक किया. अटैक करने की वजह से अपनी प्रायोरिटी थी वो चेंज हो गई. अपनी प्रायोरिटी, अपनी सेफ्टी आ गई, सेक्स एजुकेशन पे पर्दा पड़ गया. और जो पर्दा पड़ा हुआ है वो आज की तारीख में भी पर्दा पड़ा हुआ है. और वो पर्दा कभी भी कोई उठाने का ट्राई करता है तो क्या प्रॉब्लम होता है कि लोग, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और उसको करने नहीं देती है. तो उसकी वजह से सेक्स एजुकेशन मिलता नहीं है. तो जो मिसकंसेप्शन है लोगों की लाइफ में सेक्स के बारे में, खास करके टीनेज जो स्टार्ट होता है तब से, तो वो एक पीढ़ी, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को देती है, दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन को देती है. मतलब वो कंटिन्यूस विशियस साइकिल एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के पास पास ऑन करता रहता है. और राइट इंफॉर्मेशन, राइट
जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए, डायरेक्शन मिलना चाहिए, वो साइंटिफिक मिलता नहीं है, लेकिन उनको मिलता है, सब गलत चीजें मिलती है। अब बात आती है क्यों जरूरी है। पहले के Yes. जमाने में शादी कितने टाइम पे हो जाती थी? 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। और प्यूबर्टी कब आती थी? प्यूबर्टी आती थी, लड़कों को आती थी 14-15 साल की उम्र में आती थी, लड़कियों को आती थी 13-14 साल की उम्र में आती है। आज की तारीख में क्या होता है? शादी हो, कैरियर ओरिएंटेड हम सब हो गए हैं, तो जिसकी वजह से शादी हो गई 25 साल के बाद होती है लड़की की, लड़कों की शादी तो 30-30 साल के बाद होती है आज की तारीख में। अपने खान पान ऐसी हो गई है, तो अपने हार्मोन्स का लेवल सब चेंज हो गया, तो आज की तारीख में प्यूबर्टी जल्दी होने लगी है। लड़कियों को हो जाती है 9-10 साल के, 11 साल की उम्र में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, लड़कों को 12-13 साल की उम्र में हो जाती है। और रिस्ट्रिक्शन, वही पुराने जमाने वाले रिस्ट्रिक्शन आज की तारीख में भी है। पहले उनको कितना कंट्रोल करना था, 2 साल 3 साल तक करना था, क्योंकि 15-16 साल की उम्र में तो शादी हो जाती थी। और आज शादी कब होती है? 30 साल में होती है। तो उनको जो सेक्स की डिजायर है और ये सब है, तो उसका कंट्रोल बहुत लंबे टाइम तक करना पड़ता है। और उसी की वजह से वो लोग टीनेज प्रेगनेंसी होती है, सेक्सुअल एब्यूज होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, सब के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इसकी वजह से आज की तारीख में सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। Yes, thank you. आपने बहुत सारा you have put light on so many topics and it's really the age of marriage has increased. बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. 30 में first मतलब just they come first pregnancy लेके 30, 32, 35 and that is why this relationship starts लिविंग इन रिलेशनशिप्स बहुत तरह के जो नॉर्म्स अब आ गए हैं. तो बट एडोलसेंट्स को फिर भी हमको बचा के रखना है. दैट इज व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड कि कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल. तो आपने तो बहुत सारे प्रोग्राम्स किए. तो आपने कहा जैसा कि आपने कहा कि आप अगर सेक्सुअलिटी एजुकेशन बोलते हैं तो सब जगह प्रमोशन नहीं मिलता है. सो हाउ डिड यू डू इट? डिड यू डू अंडर एनी अदर बैनर? और आपने जब लोगों को बताने आप गए तो आप किसी और बैनर को यूज किया या कोई और नाम से बढ़ाया? मैं करीबन 30 साल से सेक्सुअल मेडिसिन की प्रैक्टिस करता हूँ। और जब मैं करीब, एक किस्सा बताता हूँ, 20 साल करीब पुराना किस्सा। एक स्कूल के अंदर मेरे को स्कूल ने इनवाइट किया कि आप हमारे बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने के लिए आइए। आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा पैशन है कि लोगों को ये सब चीजें बतानी है, करनी है, जिसकी वजह से आने वाली जो जनरेशन है उसको एजुकेशन मिले, वो अच्छी तरह एजुकेट रहे। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो चीज। मैंने कोई राइटिंग में मांगा नहीं उन लोगों से कि आप मुझे राइटिंग में दीजिए कि आप मेरे को इनवाइट कर रहे हैं, ऐसा थॉट्स भी नहीं आया मेरे दिमाग में। प्रॉब्लम्स क्या हुआ कि जिस दिन मेरा प्रोग्राम था उसके अगले दिन दोपहर के एक टैबलॉइड ने, न्यूज़पेपर ने प्रिंट कर दिया कि XYZ स्कूल बनेगी नंबर 1 इन द सेक्स एजुकेशन। और उसके बाद जो हल्ला हो गया, पूरे अहमदाबाद सिटी के अंदर हल्ला हो गया कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो स्कूल ने अपने हाथ ऊपर कर दिए कि हमने तो ये डॉक्टर को बुलाया ही नहीं है, वो डॉक्टर अपने आप खुद आ रहा है सेक्स एजुकेशन देने के लिए, हमको तो पता भी नहीं ऐसा कोई प्रोग्राम। बट फॉर्चुनेटली मेरे लिए क्या हुआ कि उन्होंने स्कूल में अनाउंस कर लिया था, तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता था। तो जब मीडिया वाले गए, उनको पूछा कि ये सही में ऐसा कुछ प्रोग्राम होने वाला था, तो देन दे रियलाइज कि नहीं, डॉक्टर गलत नहीं था, लेकिन स्कूल वाले डर के मारे ये बंद कर दिया। देन इट्स बिकम नेशनल इश्यू हो गया था, काफी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल तक इस बारे में छपा हुआ था। देन आई रियलाइज कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है। लोगों को प्रॉब्लम वर्ड है, 3 वर्ड्स है, SEX, सेक्स प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो शब्द को चेंज कर दो ना। अगर वो आप सबको चेंज कर लो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने उसका नाम कर दिया HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड इंफॉर्मेशन एजुकेशन। तो चीज तो वही है, HIV एड्स प्रिवेंशन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सेक्स एजुकेशन ही देना है। सेक्स एजुकेशन, तो सेक्स एजुकेशन हटा के उसको HIV एजुकेशन कर दिया है, एड्स एजुकेशन कर दिया, प्रिवेंशन कर दिया। तो उसकी वजह से एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर हो गई। और आज की तारीख में मैं 30 साल हो गए ये टॉपिक पे बात करता हूँ। गवर्नमेंट मेरे को बुलाती है स्कूलों में एजुकेशन टॉक देने के लिए। एवरी ईयर कॉर्पोरेशन की स्कूल्स होती है, उसके अंदर मैं जाता हूँ। और गवर्नमेंट ने खुद उसके लिए बुक निकाली है, और बुक का नाम भी उन्होंने रख दिया उस पर कि HIV एड्स एजुकेशन। ओके, सो दिस वाज अ वेरी मच मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. आपको कवर, बुक का कवर चेंज करना है, कंटेंट तो वही है। यस, वेरी नाइस. सो
under this heading you can give the sex education, but if you write sexuality education or something तो वो promote नहीं हो पाता आप है. जब भी सेक्स वर्ड यूज करोगे तो लोगों के कान ऊपर हो जाते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए आपको उसका कवर चेंज करना है, उसका नाम चेंज करना है, और HIV एड्स कर दीजिए. HIV एड्स भी क्या होता है कि भाई आप क्यों कैसे प्रिवेंट करोगे, तो वही सब चीजें इसके अंदर है. टीनेज में कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये सब इसी के बारे में बात करनी है. सेक्स एजुकेशन की जो बात करनी है वही चीज इसके अंदर हमको बात करनी है. थैंक यू सो मच. अब मैं पूछना चाहूंगी कि व्हाट आर द कॉमन मिथ्स, सेक्सुअल मिथ्स दैट यू कम अक्रॉस. यूजुअली आपको बहुत सारे ऐसे गलत फहमियां पाल के रखते हैं लोग, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर सुप्रिया, मैं चाहूंगा एक आध चीजें और उसके बारे में थोड़ी मैं बताऊं सेक्स एजुकेशन के बारे में, और उसके बाद हम मिसकंसेप्शन पे जाए, अगर आपकी परमिशन हो तो. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चा प्यूबर्टी में आता है, 13-14 साल की उम्र का होता है, उसके शरीर के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं. मेल सब लड़का होता है तो टेस्टोस्टेरोन का बनना शुरू होता है, जिसकी वजह से उसको बियर्ड आनी शुरू होती है, उसका आवाज जो होता है गहरा होता है, सीमेंट बनना शुरू होता है, उसको अपोजिट पार्टनर के लिए अट्रैक्शन शुरू हो जाता है. फीमेल्स के अंदर भी ऐसा होता है कि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उनको भी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, अपोजिट पार्टनर के लिए अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है. उसके शरीर में जो चेंजेस आते हैं उसको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो उसके दिमाग में, मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आ जाती है, ये क्या हो रहा है. तो वो क्यूरियोसिटी किसके पास जाएगा पूछने के लिए? सबसे पहले उसके लिए है उसके पेरेंट्स, माँ बाप जो है. माँ बाप के पास वो पूछेगा मेरे शरीर में क्या आता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, वो उसको डांट देते हैं. ऐसी गंदी चीज करता है, ऐसा गंदा सवाल पूछता है, ऐसा करके उसको डांट देता है, तो बच्चा आगे सवाल नहीं पूछता है. तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे ने सवाल पूछना बंद कर दिया तो चलो अपने इसमें से छुटकारा मिल गया, और इसको बच्चे को आगे उसके मन में अब कोई सवाल नहीं रहेगा. लेकिन उसको आंसर नहीं मिला है बच्चे को, तो उसके मन में वो क्यूरियोसिटी घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है. तो वो सेकंड ऑप्शन उसके पास क्या है, वो किसको पूछेगा? टीचर्स को पूछेगा अपने. सबसे पेरेंट्स के बाद क्लोज वो किसके साथ होता है? टीचर के साथ होता है. जब लेकिन टीचर्स खुद अपनी सेक्सुअलिटी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप देखते होंगे 12th के अंदर जब रिप्रोडक्टिव का सब्जेक्ट आता है तो काफी स्कूल के अंदर काफी टीचर्स जो होते हैं वो पढ़ाते नहीं है, बोलते हैं आप घर जाके पढ़ लीजिएगा ये सब्जेक्ट. जब वो खुद कंफर्टेबल नहीं है ये सब्जेक्ट के लिए, तो वो बच्चे को आंसर नहीं देते, गोल गोल घुमा के बच्चे को भगा देते हैं. अब बच्चे के पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो उसके दोस्त. उसके दोस्त की उम्र उसके जितनी होती है, नॉलेज भी उतने जैसा होता है, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट से नॉलेज लिया होता है. और इंटरनेट में काफी बार नॉलेज नहीं मिलता है. लेकिन जो सेक्स के बारे में पर्टिकुलरली जो मैं बात करूं, तो इसमें टिटलिंग वाली चीजें होती है, आपको मिसगाइड करने वाली चीजें अंदर होती है, आपको अलग दुनिया में ले जाने वाली होती है. नॉलेज की जगह पे आपको प्लेजर वाली बात आ जाती है उसके अंदर. तो काफी बार मैं बोलता हूं कि जो स्कूल की प्रयोगशाला होती है ना, वो सेक्स की प्रयोगशाला बन जाती है. आप अपने बच्चे को कभी भी इग्नोर मत करिए, उसके मन में जो सवाल है उसका जवाब दीजिए. अगर आपके पास उस टाइम पे जवाब नहीं है तो आप उसको बोलिए बेटा मेरे पास अभी जवाब नहीं है, मैं किसी और को पूछ के आपको बताती हूँ या बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है. या आप कोई उसके उसके लिए कोई जो नॉलेजेबल पर्सन है, डॉक्टर है या कोई और, उसके पास ले जाइए और उसके मन का समाधान कीजिए. मन में से एक बार समाधान होगा, शायद उसमें से एक के से दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरे से तीसरा क्वेश्चन आएगा. लेकिन जब तक उसकी क्यूरियोसिटी शांत नहीं होगी तब तक वो जवाब फाइंड आउट करेगा, और उसको अगर प्रॉपर जवाब नहीं मिला तो वो उसका आगे. कोई बिल्डिंग बनानी है आपको, बिल्डिंग बनाने के लिए उसका सबसे मजबूत चीज क्या होना चाहिए? उसका बेस होना, उसका जो पिलर होता है वो मजबूत होना चाहिए. अगर पिलर मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग कहां से मजबूत बनेगी? इसी तरह बच्चा जब छोटा है, उसकी नॉलेज या उसकी अपब्रिंगिंग प्रॉपरली नहीं होगी, तो जब बड़ा होगा तो उसकी अपब्रिंगिंग भी बराबर नहीं हो पाएगी. बहुत सही आपने कहा. बिकॉज बच्चों के इन सवालों से लोग भागते हैं और दे ट्राई टू एस्केप द आंसर्स, उनको पोस्टपोन करते हैं, उनको डाइवर्ट करते हैं. नोबडी ट्राइज टू आंसर देम प्रॉपरली. तो इसीलिए ये तो आपने सही कहा, पेरेंट्स, टीचर्स एंड चिल्ड्रन तीनों का एक चेन है, एक लिंक है, वेयर दे कैन डिपेंड ऑन. वी हैव टू ओपन अप विद देयर एडोलेसेंट्स
and talk on this subject. Actually, people try not to talk on this subject, but recent few days से देख रहे हैं, years से, कि this has become a talk of the day and very essential to stop these teenage pregnancies and lack of information और contraception का क्या choice and everything. We need to NHIV/AIDS से बचने के लिए, so we need to educate our adolescents. You are very, very right in what you have said. सी So now, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप क्यूरियोसिटी उनकी सॉल्व नहीं करोगे तो वो ये जैसे आपने बताया कि टीनेज प्रेगनेंसी है या सेक्सुअल एब्यूज तक होता है, अनवांटेड मदरहुड होता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर दिमाग में, इवन सेक्सुअल क्राइम, रेप्स। आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि 25-30 साल का ही लड़का रेप करता है, 15-16 साल के लड़के भी आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि वो सेक्सुअल रेप करते हैं या कोई ऐसी गलत चीजें करते हैं। तो ये सब चीजें अगर आपको प्रिवेंट करनी है तो सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। yes, we are very happy that FOXY, our own association, has joined hands with the Indian Academy of Pediatricians and few NGOs and 3-4 bodies. उनका एक मेमोरेंडम MOU साइन हुआ है that has to be passed through the government, and comprehensive sexuality education को एक important curriculum स्कूल में डाला जाएगा. बहुत If बढ़िया। and your suggestion that change the name, that was very nice, and I'm going to put it up कि उसको किसी और नाम से डालें तो more acceptable to the government, to the public, teachers, everybody, because ये वर्ड को लोग थोड़ा ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं. HIV एड्स डालोगे तो पेरेंट्स भी तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, बोलेगा नहीं मेरे बेटे को आगे जाके बीमारी नहीं हो, कुछ तकलीफ नहीं हो, उसके लिए उसको जानकारी मिलनी जरूरी है, तो वो लोग भी तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे ये चीज. यस, और डॉक्टर पारस आपने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया. अब थोड़े से मिथ्स आप बताएं जो आपको, सेक्सुअल मिथ्स आपके क्रॉस आपने देखा अपने लाइफ में, सो आप उसको बताएं हम लोगों को. मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मैं बॉम्बे में KEM हॉस्पिटल में था. मैं 4.5 साल मैंने डॉक्टर प्रकाश भाई कोठारी, उनके बारे में तो कुछ और बोलना ही नहीं है, इज पद्मश्री. और ही वॉज मतलब कह सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन और सेक्स की बात इंडिया में शुरू करने वाले डॉक्टर कोठारी साहब ही थे. उनके साथ मैंने काम किया. तो मैं बता रहा हूँ, मैं 90s की बात बता रहा हूँ, 96, 95, 96 में उनके साथ काम कर रहा था. तब से आज 2025 आ गया, लेकिन लोगों के जो मिथ कंसेप्शन उस जमाने में था वही आज के जमाने में भी है. इतनी सारी मैं कॉलम्स लिखता हूँ, मेरे तरह काफी बाकी लोग डॉक्टर्स भी है, वो भी कॉलम्स लिखते हैं, टीवी शोज करते हैं, इंटरनेट इतना आ गया, इतना एजुकेशन हो रहा है, ये सब हो रहा है, फिर भी जो मिसकंसेप्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है मास्टरब्यूशन के बारे में. मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है, पढ़ा लिखा आता है, इवन डॉक्टर्स आते हैं, उनकी सब हिस्ट्री खत्म हो जाती है. उसके बाद आखिर में काफी मतलब 60-70% लोग तो ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये जो मेरा प्रॉब्लम है ना, बचपन में बहुत गलत आदत की पड़ी थी, उसकी वजह. वो गलत आदत क्या? मास्टरब्यूशन. वो मास्टरब्यूशन को गलत आदत बोल रहा है, तो मास्टरब्यूशन की वजह से मेरे को ये तकलीफ है. तो मोस्ट कॉमनेस्ट मिसकंसेप्शन इज रिगार्डिंग द मास्टरब्यूशन. सेकेंड है सीमेन. सीमेन उसने बहुत यूटिलाइज कर लिया है और उसी की वजह से आज ये प्रॉब्लम आता है. अपने इंडियन पॉपुलेशन के अंदर एक दांत सिंड्रोम करके आता है, उसके बारे में, पिनिस साइज के बारे में, पिनिस कर्वेचर के बारे में प्लेंटी ऑफ मिथ एंड मिसकंसेप्शन पड़े हुए हैं. मैं तो ये कहूंगा कि काफी बार दर्दी पेशेंट नहीं होता है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन के सोच सोच के वो खुद पेशेंट बन जाता है. So very well, new things to for us to learn and know. अब हमारे ऑडियंस को काफी जानकारी आपने दी. अब मैं जानना चाहूंगी कि जो आपने एक लिखा था, आपको बेस्ट पेपर अवार्ड मिला था. You were awarded with best paper for how sexual life affected after Godhra riots in 2002 and Twin Tower attack in USA. So what do you have to say about this? What paper you presented that you got the best paper award in USA? डॉक्टर सुप्रिया, मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा चाहूंगा कि मैं ये इसके बारे में जरूर बताता हूं मैं, लेकिन जो मिसकंसेप्शन है उसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताऊं. क्योंकि क्या है कि गायनेकोलॉजिस्ट भी है आप लोग, तो आप भी डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको ये सब हस्बैंड के प्रॉब्लम्स आते होंगे, वाइफ के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके अंदर भी ये मिसकंसेप्शन के बारे में होता है. तो हाउ टू टैकल दिस थिंग.
अगर कोई बोलता है आके कि डॉक्टर साहब मैंने बचपन में बहुत ज्यादा मास्टरब्यूशन कर लिया है और इसी की वजह से मेरे को तकलीफ है, तो हाउ यू हैंडल दिस थिंग? आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई आप गलत किया, राइट किया, क्या चीज है? तो आई लाइक टू टेल समथिंग अबाउट द मास्टरब्यूशन। पहली बात चीज, मास्टरब्यूशन एक आदत है, हैबिट है, डिसीज नहीं है। डिसीज होता तो उसकी मेडिसिन होती। आपको फीवर आता है, वायरल फीवर है, मलेरिया फीवर है, या अपेंडिक्स है, कि कुछ भी हुआ है, आपको पीसीओडी है, तो आप दवाई देंगे उसके लिए, क्योंकि वो डिसीज है। लेकिन मास्टरब्यूशन डिसीज तो है नहीं, वो तो आदत है। तो आदत है तो इसके लिए कोई दवाई नहीं है उसके लिए। तो लेकिन सबसे पहली चीज तो ये है, मास्टरब्यूशन सही है कि गलत है, उससे कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है। अगर मैं आपको पूछूं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉइटस क्या गलत है, उससे कोई नुकसानी होती है? अगर कॉइटस से कोई नुकसानी शरीर में नहीं होती है, अगर वो बुरा नहीं है, तो मास्टरब्यूशन भी बुरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चीज सेक्स के टाइम पे पेनिस वजाइना में करता है, वही चीज मास्टरब्यूशन के टाइम पे पेनिस हाथ की मुट्ठी में करता है। तो अगर सेक्स खराब नहीं है तो मास्टरब्यूशन भी खराब नहीं है। सेकंड सवाल आएगा मन में, डॉक्टर साहब आपकी बात मान ली कि मास्टरब्यूशन से कोई नुकसान ही नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, लेकिन मैंने तो क्या किया है सर, बचपन से कर रहा हूं, इतना एक्सेस किया हुआ है कि मेरे शरीर में अब सीमेंट रहा ही नहीं है। मेरे मुंह पे देख रहे हो आप, बिल्कुल तेज नहीं रहा है। ये सब मास्टरब्यूशन की वजह से हुआ है। तो मैं वो पेशेंट्स को बोलता हूं कि आप दिन में 2 घंटा बोलते हैं, मैं डॉक्टर हूं, दिन में 4 घंटा बोलता हूं, और कोई पॉलिटिकल लीडर है वो दिन में 8 से 10 घंटा रैलियों में भाषण देता घूमता रहता है। तो क्या 5 साल के बाद आपकी जबान ताकतवर रहेगी और वो पॉलिटिशियन लीडर जो दिन में 8-10 घंटा बोलता है उसकी जबान कमजोर पड़ जाएगी? जिस तरह ज्यादा बोलने से जबान कमजोर नहीं पड़ती है, उसी तरह ज्यादा मास्टरब्यूशन करने से या तो सेक्स करने से पेनिस में कोई नबलाई नहीं आती, वीकनेस नहीं आती, और उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। तो यू नीड टू गिव देम एग्जाम्पल। अगर आप पेशेंट्स को एग्जाम्पल दोगे तभी उसको वो बात समझेगा, मानेगा, वरना तो आपके कैबिन से बाहर, कैबिन में बैठा है तब तक तो बोलेगा ठीक है डॉक्टर साहब आपने बताया बराबर, हफ्ते के बाद वापस आएगा, बोला डॉक्टर साहब आपने वो बोला था वो तो बराबर है, लेकिन वो प्रॉब्लम तो मेरे को उसी की वजह से हो रही है। तो यू गिव एग्जाम्पल्स ऑलवेज कैरी मोर वेट। Yes. आपको ये Evidence-based medicine. Everywhere you there's need to evidence. tell all these things about that things. सेकंड, मैंने बताया था आपको, सीमेंट के बारे में बताया। लोगों को ऐसा लगता है सीमेंट होता है उस वो ताकत होता है उसके अंदर, लेकिन लोग जानते नहीं है सीमेंट है 24 घंटा बनता रहता है। आप जागते हो, सोते हो, कुछ भी करते हो, अगर ये आप अभी पॉडकास्ट सुन रहे हो तो वो भी तभी भी उसका काम तो चालू है। जिस तरह फैक्ट्री में माल बनता है, उसी माल बन के गोडाउन में इकट्ठा होता है, इसी तरह टेस्टिस सीमेंट बनाती है 24 घंटा और सेमिनल वेसिकल के अंदर इकट्ठा करती है। एक ग्लास है उसके अंदर और पानी डालोगे तो क्या होगा? पानी भर जाएगा, उसके बाद और पानी डालोगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह पर्सन मास्टरब्यूशन नहीं करेगा, सेक्सुअल रिलेशंस नहीं रखेगा, तो सेमिनल वेसिकल ओवरफ्लो हो जाएगा, तो उसकी वजह से सीमेंट बाहर आ जाएगा। एक कतरा सीमेंट बराबर 100 कतरा खून का, और एक कतरा खून का बराबर बहुत सारा हेल्दी खाना। ये सब मिसकंसेप्शन है, उसकी वजह से लोगों को सेक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये टीनेज में ज्यादा होती है। और इसी की वजह से लोग क्या होता है, मास्टरब्यूशन नहीं करते, उनको लगता है इससे वीकनेस आ जाएगी, उनकी आसक्ति चली जाएगी, एक्ने हो जाएंगे। सीमेन है वो बहुत वाइटल है, उसको स्टोर करना चाहिए, तो उसकी वजह से न तो उनके पास पार्टनर तो होते नहीं है, यंग होते हैं, तो उसकी वजह से वो फिर पेड सेक्स में चले, मास्टरब्यूशन नहीं करते डर की वजह से, तो पेड सेक्स में चले जाते हैं, सेक्सुअल क्राइम करते हैं, ये सब। तो अगर आप सेक्स एजुकेशन दोगे और उसके अंदर ये सब चीजें बताओगे उनको, तो उसकी वजह से सेक्स टीनेज प्रेगनेंसी नहीं होगी, अनवांटेड मदरहुड नहीं होगा, सेक्सुअल क्राइम कम हो जाएगा, रेप कम हो जाएगा, और HIV एड्स और बाकी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो काफी हद तक आप उसको कम कर सकते हो।
Thank you, Dr. Saab. This shows your long-standing practice and the people, the type of practice, जितने सारे complaints किस field में आते हैं, you have explained that very well. And mostly, I would like you to throw more light on uh, this Godhra Kand. What happened? Why Yes. people were affected, and even after COVID. So we can correlate all these three together. And wanted to know how did you get the best paper award for this one? So, What happened after Godhra connected to Gujarat was the place where this had happened, unfortunately. तो मेरे पास पहले पेशेंट्स आते थे गोधरा, वो सब ठीक हो गए तो हुए थे। गोधरा जो कांड हुआ, राइट्स हुए 2002 के जो राइट्स हुए, उसके बाद 6 महीने 1 साल के बाद वो वापस आए। डॉक्टर साहब सब तो बराबर था, लेकिन पता नहीं हमको बिल्कुल आज सेक्स की डिजायर नहीं हो रही है, इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है। तो यूजुअली व्हाट विल डू कि जब भी डिजायर की बात आती है या इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है तो बेसिक हार्मोनल इवेल्युएशन हम करते हैं। तो जब ये फाइंड आउट कि उनका टेस्टोस्टेरोन, पर्टिकुलरली फ्री टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल काफी लोगों के अंदर लो पाया गया। पहले ये लोगों का किया हुआ था, जब वो तकलीफ थी तब उनका लेवल परफेक्टली नॉर्मल हुआ करता था, लेकिन बाद में जब ये हुआ तो उनका लेवल काफी हद तक लो चला गया था। देन वी रियलाइज कि ये जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, इससे सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, इरेक्शन प्रॉपर नहीं आता है। तो हम लोगों ने मैंने और डॉक्टर अर्चना ने एक रिसर्च पेपर किया था, और सिंगापुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान में ये हमने वहां प्रेजेंट किया। उस टाइम के डॉक्टर जूडी करके हुआ करती थी, यूएस से आई हुई थी, वो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे। सी फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग दिस पेपर, और उसको लगा कि ये जब यूएस में ट्विन टावर अटैक हुआ था तो 2000 ये जो अटैक हुआ तो वहां पे तो बेबी बूम हुआ था, लोगों को डिजायर एकदम बढ़ गई, और 9 महीने के बाद बेबी बूम हुआ। तो गुजरात में ऐसा क्यों हुआ, इंडिया में ऐसा क्या हो गया कि लोगों की डिजायर कम हो गई। सो माई सेल्फ, डॉक्टर जूडी एंड एक इजराइल से बंदा था वहां, पैलेस्टाइन और इजराइल, तीनों ने कंबाइंड स्टडी किया कि yes. प्रॉब्लम कहाँ हुआ था, क्यों ऐसा हुआ। तो पता चला कि गुजरात का जो प्रॉब्लम हुआ था, 6 महीने तक तो राइट्स चले थे, उसके बाद भी लोगों के मन में काफी डर हुआ करता था कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, मतलब जो स्ट्रेस लेवल था वो क्रोनिक हो गया था। और यूएस का जो हुआ था वो एक्यूट हुआ था, मतलब लोग एकदम डर गए। 1-2 दिन के लिए घर जाने के लिए उनको नहीं मिली, तो रास्ते में उनको लगा कि जिंदगी का आखिरी दिन है, तो उनको जो मिला उसमें प्लेजर ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने वो वहां पे कार सेक्स हुआ, टनल में हुआ, सभी जगह ऐसा सेक्स हुआ और बेबी बूम हुआ। लेकिन तीसरे चौथे दिन पे चीजें नॉर्मलाइज होने लगी थी, तो वहां टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से वहां पे बेबी बूम हुआ। और गुजरात के अंदर वो क्रोनिक हो गया था, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी लो गया था, तो उसकी वजह से डिजायर और इरेक्शन का प्रॉब्लम आया था। और पैलेस्टाइन में भी सेम चीज हुआ, वो भी क्रोनिक चीज है, तो वहां पे भी ये चीजें फाइंड आउट की गई। तो उस ये पूरा नया कंसेप्ट के साथ हुआ था, पूरा नया एंगल दिया गया था टेस्टोस्टेरोन और स्ट्रेस को, एक्यूट और क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से क्या हो सकता है। तो दैट्स द रीजन वी गॉट द बेस्ट पेपर प्राइज। So congratulations for that. थैंक And यू। really, it is a very, very unique thing that we came to know about this. Ki these stress really affects a human mind, and that may be the reason of all this, what happened. I always say, Supriya, there are 4S in this. If anyone having this 4S in their life, they cannot enjoy the 5th S of the sex. वो कौन से 4S है? फर्स्ट S है स्मोकिंग, किसी भी तरीके से आपने लिया हुआ टोबैको हो, वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा हो, या वो खैनी खाते हैं, कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके से लिया हुआ टोबैको है, वो आपकी सेक्स लाइफ को अफेक्ट करता है। दूसरा S है स्कॉच, मतलब अल्कोहल, वो 5 रुपए वाला अल्कोहल हो या 5,000 रुपए वाला अल्कोहल हो, बियर हो, रम हो, विस्की हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। थर्ड एस इज स्ट्रेस, एंड फोर्थ एस इज शुगर, दैट्स अ डायबिटीज। ये 4S में से एक भी एस अगर आपकी जिंदगी में है, तो आज नहीं तो कल 5वां सेक्स का एस एंजॉय करने में तकलीफ आने की पूरी संभावना है। 2 चीज अपने हाथ में है, 2 चीज अपने हाथ में नहीं है।
स्मोकिंग एंड स्कॉच अपने हाथ में है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। स्ट्रेस एंड शुगर अपने हाथ में नहीं है, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। Very nice, very nice. And one more thing, like this 4S, you also wrote somewhere like 3R. So what about it? ये 3R क्या है? What is मैं that? आई ऑलवेज टेल, जब भी मैं टीनेज एडोलसेंट होते हैं ये सबको बात करता हूँ, तो उनको मैं हमेशा ये 3 R के लिए बार में खास बताता हूँ कि जब आप किसी के प्यार में होते हैं या किसी के साथ डीपली इन्वॉल्व होते हैं और फिर आप सेक्सुअल रिलेशंस रख लेते हैं और फिर बाद में फिर सो मेनी प्रॉब्लम्स आते हैं इसके अंदर, तो मैं ऑलवेज कहता हूँ ये 3R अगर आप दिमाग में रखोगे और उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लोगे तो ज्यादातर आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। फर्स्ट R है आपका राइट। फर्स्ट R इज राइट। आपको राइट है किसी को भी मना करने के लिए। आप कितना भी किसी को चाहते हो या कोई आपको कितना भी चाहता है, कोई लड़का आपको बोले कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, इतना प्यार मैं तुमको करता हूं, तो क्या तुम मेरे साथ रिलेशन नहीं रख सकती हो? तो यू हैव राइट टू से यस और नो। Yes, you आप can मना say no. कर सकते हो कि भाई नहीं, ये मैं शादी के बाद ही करूंगी, या शादी मैं आई एम नॉट रेडी फॉर दिस थिंग। सो यू हैव राइट टू से यस और नो। सेकेंड R है रिस्पेक्ट। आप जो भी एक्ट कर रहे हो उसकी वजह से आपके आपकी खुद की आंखों में गिर रहे हो। आज आपने एक्स्ट्रा मैरिटल या प्री मैरिटल रिलेशंस रखा तो उसकी वजह से क्या आप अपनी खुद की आंखों में गिर रहे हो? और तीसरा R है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो भी एक्ट कर रहे हो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। फिर आप बोलो कि मेरे को नहीं पता था या मेरे को ये फोर्स किया गया, ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये 3R को आप जान के करोगे ना तो आप 99% गलत नहीं हो सकते आपके डिसीजन लेने में। सो आई ऑलवेज टेल टीनेजर्स जो होते हैं खास करके कि ऑलवेज रिमेंबर 3 R's बिफोर टेकिंग एनी स्टेप इन पर्टिकुलरली सेक्सुअल लाइफ के अंदर। ये 3 R आप सोच के करो। थैंक यू डॉक्टर पारस। और एक चीज मैं पर्सनल लाइफ का जानना चाहूंगी कि सिंस यू हैव बीन अ renowned sexologist and you have two sons, what I came to know, so in your personal life अपने family में कभी did you teach your adolescent children, did you talk about this sexuality education anything, because both are boys, they are twins, so let me know about that aspect. Supriya, I had Millennium twins. They born in the 1st January 2001. तो मैं डॉक्टर हूँ, मेरे वाइफ डॉक्टर है, मेरे फादर ही वॉज रिनॉन्ड सर्जन, ही वॉज IMA नेशनल प्रेसिडेंट, डॉक्टर के साहब। माय मदर सी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो घर का पूरा एनवायरनमेंट डॉक्टरी वाला था। तो पहले जो हम बच्चे हुआ करते थे तो पेरेंट्स जो बात करते थे वो सर्जरी की बात करा करते थे, और मदर थे गायनेकोलॉजिस्ट की बात, मतलब गायनेक के रिलेटेड। फिर जब मैं आया, मेरे वाइफ आए, तो बातें चेंज होने लगी। मेरे पेशेंट्स के बारे में बात भी होती थी। काफी बार हम लोग बैठे होते हैं तब पेशेंट का फोन आ जाता था, तो उनके प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस फोन पे होती थी, तो बच्चे सुनते रहते थे। न्यूज़पेपर में मैं लिखता हूँ तो काफी बार न्यूज़पेपर भी वो लोग पढ़ते हैं, तो उनकी वजह से भी वो उनको पता था कि ये क्या सब्जेक्ट है। तो उनके मन में जब भी क्यूरियोसिटी आती थी वो पूछते थे। कभी मेरे को पूछते थे, कभी अपनी मम्मी को पूछते थे कि मम्मी ये पापा ये बात बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? सो वी ऑलवेज आंसर देम। हमने कभी इनको इग्नोर नहीं किया कि हम ये इसको जवाब नहीं देंगे या उनको टाल देते थे। उनको राइट इंफॉर्मेशन देते थे। तो उसकी मन में उसकी वजह से क्या होती थी, क्यूरियोसिटी नहीं होती थी। इवन इनफैक्ट मैं बताऊं 12th के अंदर जो रिप्रोडक्टिव होता था मेल का होता था, तो मैंने पढ़ाया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव डॉक्टर अर्चना ने पढ़ाया। उनके फ्रेंड्स भी आते थे कंबाइंड स्टडी के लिए, पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव के लिए, तो उनको भी पता था। तो ये उसके लिए बहुत इजी हो गया, और ये हर पेरेंट्स को करना चाहिए। आज मैं काफी बार देखता हूं, मेरे पास एडल्ट पेशेंट आता है, नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज होता है या सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम होती है, 25 30 32 साल के हो गए होते हैं, पर्सनल हाइजीन नहीं रखते होते हैं, उनको फाइमोसिस होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि ये फाइमोसिस है उनको, और उनकी वजह से वो रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर वो पेरेंट्स ने नहाते समय उनको बताया होता कि आपको प्राइवेट पार्ट को कैसे क्लीन करना है, क्या करना है, तो बचपन में ही फाइमोसिस डिटेक्ट हो गया होता, प्राइवेट पार्ट को क्लीनिंग होता रहता होता।
ये सिर्फ पेरेंट्स नहीं बताएंगे, पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा? तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ये सिखाते नहीं, बताते नहीं है, और उसकी वजह से जब मैरिज होता है तब ये सब प्रॉब्लम्स आती है। So basically, education is the main pillar of everything. So we need एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रेडल। बच्चा का जन्म होते ही क्रेडल से ये सेक्स एजुकेशन स्टार्ट होना चाहिए। आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, आपने देखा होगा छोटा बच्चा 3-4 साल का बच्चा होगा तो वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता रहता है, क्योंकि उसको वहां स्टिमुलेशन मिलता है, या तो उसको वहां कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से उसको इरिटेशन होता है। लेकिन जब भी कोई बच्चा वहां हाथ लगाएगा तो पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको डांट देंगे सबके सामने, ऐसा गंदा काम करता है, ऐसे ऐसे हाथ लगाएगा, आगे जाके तू इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तेरा को ये हो जाएगा, या विल कट योर पेनिस, यहां तक बोलते हैं लोग, पेरेंट्स, मैंने सुना हुआ है। तो बच्चे के मन में वो डर बैठ जाता है, उसको लगता है ये कोई खास जगह है और उसको, मेरे को किसी से का डिस्कस नहीं करना है, किसी को उसके बारे में बात नहीं करनी है। तो ये पेरेंट्स को सीखना जरूरी है कि ये सब चीजें नहीं करनी है आपको, बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है उसके बाद सोचो आप। So what do you think in India and abroad? जैसे आपके you often go to US and you have spent some time there also. आपको ऐसे कुछ लगता है कि there is lots of difference between the Indian population regarding this aspect and the Western people? बेसिकली मिसकंसेप्शन तो वहां पे भी है, ऐसा नहीं है कि मिसकंसेप्शन सिर्फ इंडिया में है या दूसरी कंट्री में नहीं है। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या, वहाँ अच्छी बात क्या है कि वहाँ एजुकेशन स्कूल में दिया जाता है, उसका सब्जेक्ट दिया जाता है, तो बच्चा जो होता है उसकी क्यूरियोसिटी काफी हद तक वहां पे सॉल्व हो जाती है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड देयर। Yes, that I wanted to know. And then Prakash Kothari, like do you consider him as your mentor? And you have Obviously, seen he's lot. my guru. No, I whatever I learn ABCD of sex from Dr. Prakash Bhai only. So he teach me about the sex. He teach me how to talk with the patient. He teach me how to handle the media also. That's the main thing. So I heard everything, lots whatever about. I learn, whatever things, that's owned to the Dr. Prakash Kothari sir. Yes, I had seen your pictures along with him also many a times. I've worked 4.5 years with him. Yes, so you have inherited all the Guru ka jo mantra hai, you have learned lots from him. And so how do you, I am very sure like you must have lots and lots of respect for your mentor, your Guru, and in future, like I would like to know, like how did you get inspired to do so much of business, the entrepreneurship that came into you? So my president, Madam Sunita Tendulkar, she said, I could have asked you investigated all the ways how can a doctor be an entrepreneur and owner of so many business fields. So put some light on that. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं डॉक्टरी के लिए बना ही नहीं था, मेरा मन नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, सर्जन थे, रिनोड आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो फैमिली में कोई दूसरा बिजनेस तो हुआ ही नहीं करता था। सब डॉक्टर थे, मेरे चाचा भी डॉक्टर, सब डॉक्टर सब, तो कोई बिजनेस तो करता ही नहीं था, तो बिजनेस के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। तो मेरे को तो जबरदस्ती डॉक्टर बनाया गया था, लेकिन वो बैक माइंड में चलता रहा कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ और करूं, बिजनेस करूं। और उसी की वजह से मैंने ये हर बार कुछ ना कुछ नया करने की एक जो मेरे अंदर इंस्टिंक्ट होती थी, उससे मैं कुछ ना कुछ करता रहता था नया। आई गिव एग्जांपल, कोविड के टाइम पे मेरा हॉस्पिटल वाज नॉन कोविड हॉस्पिटल, तो जाते ही नहीं थे, और सेक्सुअल मेडिसिन में तो कौन आता था। लोग जब कोविड से इतने डरते थे, एक दूसरे से हाथ नहीं लगाते थे, तो मास्क पहन के घूमते थे, तो सेक्स तो कहाँ करेंगे, तो सेक्स करेंगे नहीं तो तकलीफ होती नहीं थी, तो पेशेंट्स आते नहीं, तो घर पे ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग। तो तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये पर्सनल हाइजीन का बहुत प्रॉब्लम है। फीमेल्स आके कंप्लेन करती है कि हस्बैंड पर्सनल हाइजीन नहीं रखते हैं, इतना गंदा लगता है, इतना बदबू आती है, और वो लोग कहते हैं कि तुम हाथ नहीं लगाते हो, स्पर्श नहीं करते, तो कैसे करेंगे हम लोग, इतनी बदबू आती है। और मैं भी एग्जामिन करता था तो मेरे को भी लगता था कि इतनी सिंपल चीज, लोग अपना फेस होता है दिन में 4 बार वॉश करते हैं, और प्राइवेट पार्ट हफ्ते में 1 बार वॉश नहीं करते हैं, तो वी शुड डू समथिंग। तो मैंने उस टाइम पे बैठे बैठे सोचा कि क्या किया जा सकता है, तो मैंने नई कंपनी स्टार्ट किया, इट मैटर्स इंडिया करके स्टार्ट किया।
उसके अंदर हम मेंस हाइजीन के बारे में जो जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च किए, एंड यू विल गेट सरप्राइज के आज की तारीख में मेरे काफी पेशेंट्स और पर्टिकुलरली फीमेल पेशेंट्स जो होती है, वाइफ, जो पेशेंट की वाइफ होती है, आके ब्लेसिंग करके जाती है, डॉक्टर साहब आपने दूसरा तो ठीक किया वो किया, लेकिन आपने ये बहुत अच्छा काम कर दिया कि उनको सिखाया पर्सनल हाइजीन कैसे रखना है। तो पर्सनल हाइजीन इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अगर नहीं कर, आप यू विल सरप्राइज, इवन डॉक्टर्स मैंने काफी देखे हुए हैं पर्सनल हाइजीन नहीं रखते। लोगों को मन में डर होता है कि क्या इसको साबुन से साफ किया जाता है? जिस तरह भगवान ने आंख नाक कान दिया है, इसी तरह ये भी एक बॉडी का पार्ट है। आप दिन में 4 बार फेस साफ कर सकते हैं, तो इसको रोज एवरीडे एटलीस्ट जब शावर लेते तब इसको तो क्लीन करिए भाई। लेकिन पीपल डोंट डू इट। इट रियली मैटर्स, इट मैटर्स। एंड ये जो आपका इट मैटर्स उसी किया, की वजह से नाम रखा था इट मैटर्स, नाम इसीलिए रखा था कि ये आपकी लाइफ में मैटर करता है चीज। yes, wonderful innovative idea you had. And one more thing I heard, I saw many a times you with politicians. So I think politicians, they are very much careful about what they speak and about their personal life. They don't try to mess up with the personal and private life. So they must be also your clients. So how do you deal with them? पॉलिटिशियंस हो, डॉक्टर्स हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर, हम सब ह्यूमन बीइंग है ना। क्या वो क्या हम डॉक्टर है तो क्या हमको बीमारी नहीं होगी? हमको भी बीमारी हो सकती है, उसी तरह उनको भी बीमारी होती है। क्या आपको फीवर नहीं आया कभी? आपको भी आया होगा, मेरे को भी फीवर आया हुआ है, पॉलिटिशियन को भी फीवर आता है। उसी तरह सेक्सुअल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आते हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो लोग आते हैं। लेकिन एक चीज है, सबसे मेन चीज है प्राइवेसी। आपको कभी भी आपका, फॉरगेट अबाउट द सेक्सोलॉजी, अपने मेडिकल में भी एथिक्स में है कि आपको आपके पेशेंट की कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं करनी है या पब्लिकली उसको बोलना नहीं है। और ये तो सेक्सुअल लाइफ की बात है, बेडरूम की 4 दीवार के अंदर वाली बात है। वो तो आप बोल ही नहीं सकते हो कैसा होता है, क्या होता है, क्या नहीं। आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि ये पॉलिटिशियन मेरे पास आया हुआ था या ये पॉलिटिशियन को मैं जानता हूँ। काफी पॉलिटिशियंस हमको पार्टी में भी मिलते हैं जो मेरे पेशेंट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं। लेकिन मैं कभी भी अपने पेशेंट के पास पार्टी में भी मिलता है तो सामने से जाके हाय और हेलो नहीं करता हूँ। उनको बहुत क्लियरली चैम्बर के अंदर ही बता देता हूँ कि सर मैं आपको बाहर मिलूंगा, तब मैं आपको हाय हेलो नहीं करूंगा। अगर आप मेरे को करोगे तो मैं आपको पहचानूंगा, वरना मैं आपको नहीं पहचानूंगा। क्यों? उनकी वजह से उनको एक मन में डर रहता है कि अगर ये हम डॉक्टर को हाय हेलो करेंगे या डॉक्टर हमको हाय हेलो करेगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये डॉक्टर कैसे जानता है उसको, जरूर ये इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है। Yes. So it's all about confidentiality and 101%। yes, and moreover, the sensitive issues regarding this matter. So, आपने तो बहुत सारी information दी है, Dr. Paras, and we are very happy to know, being a sexologist, a good father to your children, a good husband, because Dr. Archana and you together, you have planned so many good things. She sees about takes care of the gynec wing, and you about this very important subject that people are scared to talk about, and you have been practicing since so many years. Hats off to you for dealing and consistent. You are consistent about teaching. You want to spread the message. And to the adolescent children, they really need your help, your support. So, what will you give message to the parents of the adolescents? हमारा वो project है adolescent health. Adolescent sexuality is a huge topic these days. Even I started talking about this adolescent sexuality in many conferences. Although in the beginning I was also hesitant, but now I have taken it because the parents come, they open up कि ये problem हो रहा है. My son was there in relationship with a girl. She got pregnant. I helped her out of this situation because she was a gynec, and the moment she came to know, she helped her son and the girl involved. So this is an open forum, and we should be open about it now and more conversant. And जैसे आपने कहा कि वो मिथ को हमें छोड़ना पड़ेगा, पेरेंट्स को ओपन अप होना पड़ेगा. So Dr. Paras, very nice to know about your business aspect, the entrepreneurship.
And really, I can understand ki there was something in the back of your mind ki I should do some business. That gives you another type of satisfaction also, and you have more interactions. So thank you very much. And one last message to the adolescent children, to the parents, to the teacher, to the society regarding this sexuality education about sex. I always say sex is very beautiful things. So never ignore that things, but do it at right time and right place. So if you have any doubt, do not hesitate to ask your parents, ask your teachers. If your teachers or parents are not able to answer, ask your family physician, family doctor. Family doctor एक ऐसे लोग होते हैं कि जो आपके फैमिली की हर चीज जानते हैं, आपके बारे में, आपके बर्थ के लेके आप अभी तक के हुए तब तक की सब बात जानते हैं, और वो बाकायदा आपकी बात कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। आपकी उसके लिए हेजिटेट नहीं होना है, लेकिन डोंट, मन में मत रखो, आस्क राइट पर्सन अबाउट योर थिंग्स। और आज की तारीख में पॉक्सो और ये सब है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग्स। अगर कहीं भी, अगर दोनों की सम्मति से भी हुआ लेकिन एज नहीं है, तो बड़ी मुश्किल आ सकती है। सो ऑलवेज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड ऑलवेज रिमेंबर माय 3 hours. If you remember 3 hours, you will be never in trouble. Yes. Thank you so much, and my good wishes to you for your future endeavors. You have been, I hope and wish that you become more famous than the Dr. Kotari, and national figure as you are, an international forum also. You have done a wonderful job. So thank you for coming on this podcast series 4 on adolescent sexuality. That is the brainchild of my own President Foxy, Dr. Sunita Tandulwarkar, who is from Pune, and she's very ambitious, very inclusive, and she gives us a free hand to do whatever we want to take the celebrities. And so I'm very happy. The very first series I did with you, Dr. Padasha from Ahmedabad, the famous sexologist. And thank you for coming on this forum. Thank you, Dr. Supriya ji, Doctor. Thank you, Dr. President Madam, for inviting me this and giving me this opportunity to share my views. Thank you very much. Thank you, team. Evangel team, thank you very much. And I think the audience must have enjoyed and learned lots on this very, very difficult subject that we say. Thank you very much.